Ma'am, please start. Okay, so good evening, everyone. This is Dr. Vasundhara Mehta from Panchkula. I'm working as assistant professor in the Department of Repertory at Solon Homeopathic Medical College. So today I have the privilege to introduce this session and also give a brief introduction about Dr. Matharu, who is going to lead us uh, about various types of cases today. To begin with, I would like to actually express my gratitude towards Academy of Mind Technology, who is giving me all these opportunities again and again to be a part of their such informative sessions. And the experience with Dr. H.S. Matharu sir is simply wonderful. I am so privileged that I got the opportunity to actually witness his seminar in Dhuri recently, which was organized by Academy of Mind Technology. So about Dr. H.S. Matharu, he's a simply wonderful doctor as well as a very, very patient teacher, I must say, who teaches with such lively description of the cases along with the real-time cases. We get to see how his method, how he uses, rather not his method, how he uses Dr. Segal's method in treating various types of difficult cases. So about Dr. Matharu, he is a renowned homeopathic practitioner from Dhuri, Punjab, who has a rich clinical experience of more than 40 years. He's a very, very humble person, very down to earth, and an excellent teacher who always had the passion to find the best way to practice homeopathy ever since his initial days. This passion led him to meet Dr. Segal in Delhi, where from he got the knowledge of practical application of mind section of repertory. Only a keen and enthusiastic learner can satiate the quest of knowledge of his successors. So here we have चलो with us such a mentor who has dedicated himself to the learnings and teachings of आराम Dr. से Segal's चुप तो mind करके चलो। technology in हाँ homeopathic prescribing. So we welcome you, sir, Dr. Matharu, sir. Please enlighten us with few more of your wonderful cases. Thank you, Dr. Sindra and Dr. Rashi. आप लोगों ने प्रयास किया है इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू करने का, तो मैं आपके साथ हूँ हर वक्त जब भी आप चाहेंगे। Really, I want to talk about the potential of homeopathy. There are maximum possibilities in homeopathy prescribing in acute but chronic diseases. Of course, there are no acute and chronic diseases, only diseases, only disordered state of mind. तो मैं आज आपके साथ ही कोई माइक खुला है शायद, आप इसको बंद करिए। तो मैं एक बड़ा अच्छा केस जो मेरी नजर में बहुत अच्छा है, छोटी छोटी बातें हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि आज मैंने 44 मिनट्स में इसको सम अप करना है। ये बड़ा ही पुराना केस है, मेरे पास 13 दिसंबर को आया था 2023। ये लड़की 41 ईयर्स की है। काइंडली आप माइक ऑफ करवाइए जरा। इनको बहुत देर पहले डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया था कि आपके लंग्स हैं वो श्रिंक हो चुके हैं। तो इनको बच्चा हुआ था, तो वो बच्चा अब 16 साल की बच्ची है, बेटी है। उसके बर्थ के बाद, जब इसका बर्थ हुआ उसके बाद इसने जूस पिया। उसके बाद इसके गले में एक ऐसा कुछ स्टिक कर गया, जो आज से 16 साल अब बीत चुके हैं, अब तक वो वैसे ही प्रॉब्लम थी। बहुत सी मेडिसिन ली उन्होंने, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद का,
बहुत सी मेडिसिन ट्राई की, बट वो सेंसेशन कैसे जहां पर कुछ चिपका हुआ है वो नहीं गई। तो नींद बहुत कम आ रही थी, बहुत ही सालों से। मैंने उसको पूछा, बेटा आपको कब से ये दिक्कत है, नींद की दिक्कत कब से आ रही है? बोले सर मेरे को कम से कम 30 साल से ये होगी, बचपन से ही मेरी नींद खराब हो गई थी, तब से मुझे नींद नहीं आ रही। और धड़कन बढ़ जाती है, इसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। और इतना गुस्सा आता है, बहुत जबरदस्त गुस्सा आता है, और थकावट बहुत रहती है। मैंने पूछा थकावट कब से रह रही है आपको? बोली सर 16 साल से, जब से बेटी ने जन्म लिया तब से इतनी थकावट रह रही है, शरीर में एनर्जी ही नहीं बचती, कोई काम नहीं होता। सर दर्द इतना भयानक होता है, कोई बोलता है कि ये माइग्रेन है, कोई कुछ कहता है, कोई कहते हैं कि आपके सिर को हवा लग गई है, और कोई कुछ बोलते हैं, बट मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा। मैंने पूछा बेटा जी कब से है? सर ये तो चाइल्डहुड से, सिंस चाइल्डहुड, व्हेन आई वाज चाइल्ड, approximately 4 5 years. At that time, from that time, I am having severe headache. Till today, it's not recovered. तो ये उसका सिम्टोमोलॉजी है। काइंडली आप माइक बंद करवाइए प्लीज, कोई माइक खुला हुआ है। तो ये सिम्टोम थे केस के। सिंस चाइल्डहुड हेडेक, इतना पुराना केस। मैंने बहुत से रूब्रिक लगाए, बहुत बार मैंने सोचा कि मैं कौन सी मेडिसिन इसको दूं, और मैंने 2 3 दवाइयां इसको दी, बट कोई भी इम्प्रूवमेंट इसमें से नहीं आई। जैसे मैंने बेलाडोना भी दिया था फर्स्ट, और एक बार कुछ टाइम के बाद मैंने इनको स्ट्रामोनियम दिया था, तो कोई बात नहीं बनी। 1 महीना पहले, 2 महीने पहले की बात है, मुझे अपनी बच्ची के साथ मेरे पास आई, और बच्ची को मेरे मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज माइक ऑफ कर दिया आपने, कौन बोल रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? आपको आवाज आ Sir, रही you है are मेरी? audible. There's some डॉक्टर रूबी जिंदल का माइक ऑन है। आई जस्ट actually. चेक, प्लीज डॉक्टर उनको रूबी बोलिए जिंदल ना, का माइक बहुत ऑन है, डिस्टरबेंस प्लीज हो रही ऑफ है, कर। वो फ्लो खराब हो जाता है ना, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। डॉक्टर राशि को बोलिए उनको जरा म्यूट करें। थैंक यू। Dr. तो ये Rohini बड़ा पुराना Mohta केस था। जी, इनकी भी माइक ऑन है। तो आप बच्ची के साथ गुड़िया मेरे पास आती थी, वो भी 16 साल की, जिस बच्ची के जन्म के बारे में इसने बताया था मुझे। और जो इनको शोर थ्रोट की जो दिक्कत बोल रहे हैं, और जिस गले में जो बलगम चिपकी रहती है, वो अलग ही नहीं होती। और उन्होंने बोला कि इसके जो लंग्स हैं वो श्रिंक हो गया है, और इनको हाइपोथायराइडिज्म की भी दिक्कत आई हुई है, और उसके लिए ट्रीटमेंट चला बहुत देर, तो फिर भी इसकी कोई कंडीशन में सुधार नहीं आया। ये 11 साल की प्रॉब्लम थी, जो थ्रोट की बता रहा हूँ मैं। अब जो नींद की प्रॉब्लम थी वो 20 साल से है। तो टायर्डनेस थी बच्ची के जन्म के बाद, वो 16 साल से है।
और जो हेडेक उन्होंने बताया, सीवियर क्रॉनिक हेडेक, वो चाइल्डहुड से बता रहे हैं। तो ये हमारे पास केस था 1 month ago, 2 months ago। रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग है। तो ये जो केस मैंने फिर अटेम्प्ट किया, एक और अटेम्प्ट, मैंने सोचा ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे गुरु का दिया हुआ रास्ता, जहाँ उनकी दी हुई शिक्षा कभी फेल हो ठीक है जाए। ना, हो कभी हमारे बोल भी रहा है, है कि क्यों ना प्लेट में, हाँ हम लोग कहीं इस सिस्टम की एप्लीकेबिलिटी में उसकी हमारी कमी है कि उसको हम प्रॉपर अप्लाई नहीं कर रहे। तो मैंने फिर से केस चेकिंग की, तो इसने बार बार यही बातें बोली, और उसके हस्बैंड ने भी बोला, और जो उसकी बेटी मेरे पास मेडिसिन ले रही थी, उन्होंने बोला कि सर मम्मा को गुस्सा इतना ज्यादा आता है, इतना गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये मार ही देगी, और मुझे तो बहुत पीटती है। मैंने उससे पूछा कि बेटा रानी, आपको भी ऐसा लगता है कि आप गुस्सा इतना आता है? हाँ सर, ये तो बात आता ही है, मैं तो हुई ऐसी। मैंने सोचा ये तो मेरा स्वभाव है, मैं आपके साथ इस बात के बारे में क्या डिस्कस करना है। तो उन्होंने बार बार बोला कि सर मुझे पता ही नहीं चलता, मैं तो जैसे पागलों जैसी हरकतें कर देती हूँ, इतना गुस्सा आता है, मैं तो डंडे से भी पीट देती हूँ अपनी बच्ची को। और बाद में बड़ा पछतावा होता है मुझे कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए। और फिर मैं बच्चे को गले लगाती हूँ, प्यार करती हूँ। अदरवाइज तो मैं दिन में शब्द सुनती हूँ और वही शब्द ही अपना बोलती रहती हूँ, परमात्मा की तरफ अपना ध्यान लगा। तो ये कुछ सिम्टम्स उन्होंने मुझे बताए। तो इसके हिसाब से जब मैंने पूरी पिछली हिस्ट्री को छोड़ के ये प्रेजेंट कंडीशन उसकी जो उस वक्त उसके ऊपर हावी हो रहा था, ये विचार, और इसके साथ वो रिएक्ट कैसे करती थी हर प्रॉब्लम के साथ, उसको लगता था जब कितनी हेडेक सीवियर होता है तो बहुत चिढ़ चढ़ती थी, गुस्सा चढ़ता था, बच्चे अगर छोड़ करते थे तो भी मारती पीटती थी। ये बात उसने कभी शेयर की थी मेरे पास। तो मैंने उसको एक मेडिसिन दी। ये मेडिसिन दी हुई मुझे, इसको ये 13 दिसंबर को आई थी, और जनवरी तक तो उसका ऐसे ही चला। 2 मेडिसिन मैंने चेंज की, बट मैंने इसको फरवरी में ये मेडिसिन दी। आज 2 महीने के करीब हो गया है। शी इज टोटली फिट। जो अंदर से बलगम चिपकी हुई थी, वो बलगम निकलनी शुरू हुई, और जो सांस लेने में दिक्कत आ रही थी वो भी ठीक हुआ। और चेहरे पे, उसके हस्बैंड टीचर हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब इसके चेहरे के ऊपर निखार आ गया है, अच्छा दिखने लगा है सब। इतना चेहरा इसका ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ही आदमी थका हारा होता है, ऐसे ही ये चेहरा लग रहा था इनका। वो लड़की ने बोला कि सर मेरा सिर दर्द इतना कम मैंने कभी भी एलोपैथी मेडिसिन से नहीं देखा, इतना अब मैं ठीक फील कर रही हूँ। और ऑलमोस्ट 99% ओके है वो केस। और उसको मैंने मेडिसिन दी, ये पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या दिया उसको, मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं करूंगा, आपने स्टडी करना, देखना, मैं रूब्रिक बता रहा हूँ। आपने जो जो मैंने वर्जन बताए, जो पेशेंट की मैंने बात बताई, उसके हिसाब से उसको टैली करना, ध्यान से देखना, आपको यही लगेगा जो मैंने किया। तो मैंने सबसे पहले उसका जो रूब्रिक लिया, रेग alternating with affectionate position, रेग alternating with affectionate disposition। उसके बाद प्यार करती थी बच्चे को, बोलती थी कि गलती हो गई है, ऐसा लगता था, बोलने में नहीं, इजहार करती थी अपने एक्शन से कि ये मुझसे गलत हो गया। और इतना फिर वो माइल्ड हो जाती है, इतना हर बात को हाँ जी ऐसा है, ठीक है जी, ऐसे ऐसे बातें करती है। वो हस्बैंड भी उसके यही बता रहे थे कि फिर एकदम ऐसा हो जाती थी जैसे पानी हो गई है,
एकदम लिक्विफाई हो जाती थी पर्सनैलिटी, तो मैंने उसको माइल्डनेस में लिया। बोलती कि मैं शब्द सुनती रहती हूँ, बस कोई भी शब्द मैं लेती हूँ, मैं उसी को बोलती रहती हूँ, मतलब मैं मेरा ध्यान में कुर्बानी में लगाती हूँ। तो मैंने उसको लिया मेमोरी एक्टिव म्यूजिक पार्ट। वो एक कीर्तन होता है जो गुरबानी का, उसके साथ उसको आनंद आता था, उसमें उसको एंजॉयमेंट होती थी, और वो गुरबानी की तुकों को दोहराती रहती थी वैसे ही जो सुनती थी। और एक मैंने ये लिया, उसकी बच्ची ने भी यही बोला कि मम्मा ऐसा बिहार करती है, ऐसा पीटती है, ऐसे गाली गलौज करती है जैसे कोई पागल आदमी करता है। और उसके हस्बैंड ने भी इसी बात को बोला कि डॉक्टर साहब मूर्खों जैसा व्यवहार करती है, इतनी पढ़ी लिखी होके। शी इज एमए मैथमेटिक्स, उन दिनों में शायद एमएससी होती होगी। पर उसको मैंने पुलिस बिहेवियर में, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक अच्छा संस्कारिक और सोसाइटी अच्छी वह रहने वाला आदमी ऐसा बिहेव करता है, तो हम उसका जो बिहेवियर है उसको पुलिस बोलते हैं। पुलिस बिहेवियर लिया मैंने। छोटी छोटी बात पे उसको इतना गुस्सा चढ़ता था, इतना गुस्सा चढ़ता था, वो भयानक उसके ऊपर चपट पड़ती थी छोटी छोटी बात। एंगर डिफर्स एक्ट, एंगर अल्टरनेटिंग विद अफेक्शन। जब वो गुस्सा करती थी, बच्ची को मारती पीटती थी, तो फिर गले लगाती थी, के साथ प्यार का इजहार करती थी। तो पहले भी मैंने रेग में भी यही रूब्रिक लिया। रेग गुस्से से भी ज्यादा बड़ी हुई हालत को बोलते हैं, तो जिसमें आदमी इतना वायलेंट गुस्सा होता है वो रेग बोलते हैं। रेग आदमी तो ये उसके सिम्टम थे। एंगर अल्टरनेटिव विद क्विक रिपेंटेंसी, पछतावा होता था। मैंने उसको क्रॉकस टाइपा दी, ये क्रॉकस का रिजल्ट है। जो मैंने इतनी गलतियां की उस केस में, मैंने 2 रॉन्ग मेडिसिन दी पेशेंट को। शायद मुझे वो स्टेट समझ में नहीं आई होगी, तो जब मैंने 3rd टाइम केस चेकिंग की, ये उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो बहुत ही वेरी गुड रिजल्ट उस पेशेंट का मिला, और उसका थायराइड वगैरह वो भी सब नॉर्मल लिमिट्स में आ रहा है, और उसका वेट कम हो रहा है। एक तो बात उसके जहाँ पर वो नोड्यूल बना हुआ था बहुत ही वर्षों से, वो सॉफ्ट हो गया है। ये कमाल है माइंड टेक्निक का। जब हम इस मेथड को प्रॉपरली करते हैं, प्रॉपरली मेंटल स्टेट को समझते हैं। मेंटल स्टेट क्या है? पेशेंट का वो अपनी तकलीफ के प्रति रिएक्शन कैसे है, उसके दौरान वो कैसे रिएक्ट करता है। हमने सिम्टम नहीं देखने, उसकी स्टेट को देखना है। उसकी स्टेट से हिसाब के उसको दवाई देते हैं। ये हमारा क्रॉकिस का केस था जो बहुत ही अच्छा सॉल्व हुआ। नेक्स्ट सर, एक कैन यू केस प्लीज और। रिपीट द रुब्रिक? फर्स्ट 2 रुब्रिक्स क्लियर नहीं थे, चैट में भी लिखा है कहीं ने। हाँ, मैंने लिखा है रेट अल्टरनेटिंग विद अफेक्शनेट डिस्पोजिशन। रेट अल्टरनेटिंग विद अफेक्शनेट डिस्पोजिशन, माइल्डनेस, मेमोरी एक्टिव म्यूजिक भार, जो गुरुवाणी का कीर्तन चलता था उसको दोहराती रहती थी। पुलिश बिहेवियर, आप समझ गए होंगे जो उसने बिहेवियर करती थी, दैट वाज नॉट यू कैन से जेन्युइन बिहेवियर फ्रॉम ए सोशल सोशली एक्टिव पर्सन। वो बहुत अच्छी लड़की है। तो फुलिश बिहेवियर, एंगर प्रेफर्स एट एंगर, लाफिंग एंगर विद। एक और बात उसने बताई थी कि जब गुस्सा आता है तो साथ साथ में ये हंसने लगती है, ये बात ये हंसने लगती है, अपने गुस्से पे ही खुद ही हंसने लगती है। वो मैंने लिया था एंगर, लाफिंग एंगर विद, दोनों चीजें साथ साथ वो करती है। अल्टरनेटिंग विद अफेक्शनेट, एंगर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंसी। ठीक हो गया ना? पूरे रूब्रिक मैंने फिर से दोहरा दिए। इज इट ओके? हेलो?
हाँ, यस सर, थैंक यू। जी जी, हाँ जी। अगर एक अगला केस मैं जल्दी फ्री करना है आपको, क्योंकि 44 मिनट्स है मेरे पास। एक केस इसी बच्ची का बताता हूँ जो इसके साथ आती थी बच्ची। इस बच्ची को बहुत देर से अभी भी मोबाइल कोई अपना माइक बंद नहीं कर रहे। नॉट सिंसियर थिंग, इट्स नॉट बैड, वी आर नॉट एक्चुअली सिंसियर अबाउट। वो म्यूट कर सकते हैं, जो जो होस्ट कर रहे हैं ना, होस्ट कैन म्यूट, जिसका भी ऑन है प्लीज म्यूट कर दे होस्ट। मैम कंटिन्यूअस म्यूट कर रही हूँ लेकिन लगातार लोग ऑन कर रहे हैं। मैं म्यूट कर रही हूँ, ओहो, म्यूट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ओहो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ना इसमें आवाज ऐसा में नहीं होना बहुत चाहिए ब्रेक ना। हो रहा है फिर। बहुत अच्छा, वो मतलब बताने का इतना मन होता है ना, वो फिर बात नहीं होती, डिस्टर्बेंस होती है। हाँ चलो जल्दी, हमारे पास कितना टाइम है डॉक्टर राशि, कितने मिनट है मेरे पास? हेलो, 25 सर, सर है अभी 25 मिनट्स। 15 मिनट है। 25 मिनट्स और है हमारे पास। हाँ नहीं, 9:15 तक है ना, तो 25 मिनट्स तो हैं फिर। ओके, 9:15, मैं 9:14 पे क्लोज कर दूंगा। हाँ ये केस सुनिए आप ध्यान से जरा। इसी ही की बच्ची का केस है, जो 16 साल पहले ही पैदा हुई थी, जिसकी वजह से ये बच्ची के आने के बाद में इसको प्रॉब्लम हुई, डिलीवरी के बाद में। और के पहले थे भी थी वो, इसकी मदर जिसको मैंने क्रॉकस दिया। और ये इस बच्चे को बहुत ही छींकें आती हैं, और नाक में मांस बढ़ा हुआ है, पॉलिप्स बने हुए हैं, और बहुत ही सिर दर्द होता था। और इसको सर्वाइकल की दिक्कत बहुत देर से थी, और पढ़ती नहीं थी, बैठ के कुछ नहीं, इसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। और गर्दन में, इसके नेक में पेन हो रहा था, और बाल इसके गिर रहे थे, डैंड्रफ बहुत ज्यादा थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको कॉन्स्टिपेशन थी। और इसकी मदर की और इसके फादर जो टीचर हैं, उनकी ये शिकायत थी कि ये बच्ची मन नहीं लगाती पढ़ने में। जो हम कहते हैं ये बिल्कुल नहीं मानती। हम बहुत बार इसको कोशिश करते हैं कि बच्चा पढ़ो, ये करो वो करो, ये बिल्कुल नहीं करता। तो मैंने उसको ये केस में मेरे पास काफी देर से चल रहा था, लेकिन इसको मैंने मेडिसिन दी। मैंने पहले इसको 3 मेडिसिन दी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको ब्राइनियन 30 पे रखा, और मैंने वेट किया, और ये बच्चा कोई खास इम्प्रूवमेंट इसके इसमें नहीं आई। हल्की सी इम्प्रूवमेंट देखी, तो वो फिर वही सिम्टम लेकर के बच्चा आता था, और मानसिक तौर पे इसको कोई मेंटल में स्टेटस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देती। तो नेक्स्ट मैंने इसको सल्फर दी, इसके और स्टडी करने की कोशिश की, वो भी फेल रहा। तो मैंने फिर 15-20 दिन वेट किया, और उस सिम्टम ठीक हुए, उस सिम्टम नहीं ठीक हुए, और बच्चा जनरली बेटर नहीं हुआ। तो उसकी स्टेट ऑफ माइंड थी ना, वो बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुई। तो नेक्स्ट मेडिसिन फिर मैंने उसको, उसके और सिम्टम लिए, फिर से केस स्टडी किया, फिर करने के बाद मैंने नफ्सों का थेरेपी दी। तो उससे भी मेरे को लगा कि बच्चा काफी इम्प्रूव हो गया है, लेकिन असल इम्प्रूवमेंट उसमें बच्चे में नहीं आई जो मैं चाहता था। उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज नहीं हुआ, वो वही चीज। मैं एक्चुअली परेशान हो गया देख के कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने, जब लास्ट टाइम 1.5-2 महीने की बात है, तो मैंने उसके माँ बाप दोनों को बाहर भेज दिया। मुझे लगा कि कुछ तो बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही, या बच्चा मुझे नहीं कह रहा, या मैं उसको क्यों नहीं समझ पा रहा। तो मैंने उस बच्चे को अपने पास बैठाया। मैंने उसको बोला कि बच्चे, असल बात क्या है, तुम मेरे को बताओ कि तुम क्यों नहीं पढ़ती हो, क्यों नहीं उनकी बात मानती हो। तुम्हारे गले में दर्द होता है, ये है वो है, उसकी, मेरे को बताओ ये क्यों होता है, कैसे लग रहा है आपको। वो रोने लगी। अंकल, ये मेरे माँ बाप ना मेरे भाई को बहुत तरजीह देते हैं, उसको बहुत प्रेफर करते हैं, और मुझे, मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते। तो मेरे को हर वक्त तो मेरे को ही टोका टाकी करते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते। वो इतनी गंदी हरकतें करता है, मेरे को मारता भी है, मेरी कॉपी को फाड़ देता है, कब मेरा पेन ले जाता है। उसको नहीं बोलते, मुझे ही डांटते रहते हैं, मुझे ही डांटते रहते हैं। ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा तंग करती है।
तो मेरे को उसी को तो अच्छा अच्छा बोलते हैं, मुझे कभी अच्छा नहीं बोला इन्होंने। तो मैंने मतलब सोचा कि कमाल की बात है। तो इसकी स्टेट ऑफ माइंड और इसकी सिम्टम्स कितना अलग अलग का हमें इम्प्रेशन दे रहे हैं कि बच्चा कैसे फील कर रहा है अपने सिम्टम के साथ, उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसे आ रही है। मैंने उसको कंसिडर किया। मैंने सोचा नहीं था कभी कि ये मेडिसिन इसको ऐसा ठीक कर देगी। जो कि इस मेरे को क्लियर कट कभी ब्रेनिया का लगता था, कभी नक्सवम का था, कभी सल्फर का, सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो सिम्टम के हिसाब से वो मैंने पूरा ट्राई किया और उसमें टोटली ही फेल। और उसके बाद उसको इतनी थकावट होती थी बहुत ज्यादा। तो मैंने ये सिम्टम लिए उसके और मैंने उसको मेडिसिन दी। लेकिन आज वो बच्ची नहीं आई, पिछले हफ्ते वो आई थी। वो काफी ठीक महसूस कर रही थी। आज उसकी मदर ने भी बताया, आज ही वो फिर आई थी एक बार, कि बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा वो पढ़ने भी लगी है, वो गुस्सा भी नहीं करती अब। ये कैसा, कुछ ऐसे केस होते हैं जो अपने आप में सिचुएशन बन जाती है, ऐसी एक दूसरे को जन्म देती है सिचुएशन। मदर की सिचुएशन ने बच्चे की सिचुएशन को जन्म दे दिया। मदर की वजह से जो वातावरण बना, वो इरिटेबल हुई, वो कहीं और से हुई होगी, वही उसका और कारण होगा। लेकिन जो मदर का बिहेवियर, उसकी वजह से ये बच्चा बीमार हुआ। और बच्चे को, उसने बेटे को बहुत ज्यादा प्रेफर किया और इसको कोई प्रेफर नहीं किया। तो अभी टाइम है, आप लोग बताइए कि क्या लेना चाहिए था हमें, अगर आपका इंट्रैक्शन करना है सर तो। 3 मिनट्स नहीं आर तो मैं रिमेनिंग। आपको सर 3 मिनट्स आर 3 रिमेनिंग। मिनट्स ओनली, ओके 3 मिनट्स ओनली, सर दोबारा ओके। ज्वाइन कर सकते हैं अगर नहीं बच्चे। नहीं कोई बात नहीं, बस इसी में समाप्त करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी मैं रूब्रिक बता रहा हूँ कि इसको स्टडी कर लेते। एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, जो उसके खिलाफ थोड़ी सी बात होती थी उससे उसको दिक्कत आती थी। एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, हर वक्त उसकी कॉन्ट्राडिक्शन ही होती रहती थी। एलिमेंट्स फ्रॉम रूटनेस, माँ बाप का बिहेवियर उसके प्रति इतना रूट था, मदर का खास करके रूट था, तो उसकी वजह से उसको डिस्टर्बेंस होती थी। बोलती कि मुझे कभी इन्होंने अच्छा नहीं बोला, मैं इतना अच्छा काम करती हूँ, उसी को अच्छा बोलते हैं, उसी को अच्छा बोलते हैं। रिलीजन एप्रिशिएटेड शी इज नॉट, उसी को अच्छा बोलते हैं। मेरे मेरे को उससे ना अभी हीर का होने लगता है, मेरे को जेलसी होने लगती है। जेलसी एप्रिशिएट एनीथिंग डिजायर्स दैट अदर शैल नॉट, किसी को वो, औरों को वो किसी चीज को भी वो ना अप्रिशिएट ना करें, उससे उसको जेलसी। और सैडनेस लाइक फ्रॉम एन अनडिजर्व, मेरा कसूर नहीं होता, मैं ये डिजर्व नहीं करती, तब भी मेरी वो इंसल्ट हो जाती है, तब भी मेरे को अपमानित कर देते हैं, उससे मेरा मन उदास होता है। ये वजह है मेरी पूरी बीमारी की। तो मैंने इसको हेमामेलिस दिया। आपने इसको घर में अपने स्टडी करना, देखना, इतना कमाल हेमामेलिस ने किया। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसे सिम्टम से सारे हेमामेलिस को कैसे कवर करेंगे। दोनों माँ बेटी, माता प्रोकेस के साथ और बच्ची हेमामेलिस के साथ 100% ओके इसका रिजल्ट मिला मुझे। थैंक यू वेरी मच, हमारा स्नान हो गया और आज के लिए इतना ही। आपके जोबरी को स्टडी करना, देखना और अप्लाई करके देखना, ऐसा ही तो वो आपके सामने बिहेवियर आए तो उसको आप मद्देनजर रखते हुए इसको जरूर ध्यान। थैंक्स वेरी मच।